بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ڈاکٹر بیرسٹر انجینئر رام اسپیکٹر پھر حاضر۔ کہنا یہ تھا کہ آج میرے ذہن میں خاص بات آئی ہے مذہب سے متعلق، کیونکہ میری فیملی جو ہے بیک گراؤنڈ میرا بہت مذہبی ہے۔ میں پیر سید ہوں، ڈاکٹر ہوں، بیرسٹر ہوں، انجینئر ہوں، لیکن ساتھ ساتھ مذہبی طور پہ ہم جو سیکل فیملی ہے ہم پیچھے سے ہمارا شیخ کا خطاب ہے ابو کا، مذہب کی وجہ سے، مذہبی تعلیم کی وجہ سے، اور مذہب کی ترقی اور فروغ کا کام اور مذہب کے دفاع کا کام، مذہب کی ترقی کا کام، فروغ کا کام ہم نے والد سے اور والدہ سے سیکھا ہے کہ اپنے مذہبی عبادات کی جو ہماری عبادات کے علاقے ہیں، مکہ مدینہ شریف یا عبادت گاہیں ہیں جیسے مسجد ہے، پیروں کے مقبرے ہیں، ان کی حفاظت کرنا اور دین کی ترقی کا کام یا دین کے مسائل کو حل کرنے اشتہادی کام یہ ہمارا جدی کشتی میرے والد سے، میرے ابو آرمی ریٹائرڈ تھے، تو اس کے بعد یہ کام میرے ذمہ میں آیا۔ میں بیرسٹر تھا، انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا، جرنلسٹ تھا، سائیکٹرسٹ تھا، اور اس کے علاوہ میں بیوروکریٹ تھا۔ تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم دین کا کام، دین کی ترقی کا کام، امن کا کام پوری دنیا میں، صرف دین کی دفاع جو ہے وہ دین کے علاقے کا کرتے ہیں، اور دین کے کئی معاملات میں قرآن میں نئی چیزیں داخل نہ کریں، قرآن کے اعراب کو، قرآن کے متن کو خراب نہ کریں، حدیث شریف کو خراب نہ کریں، اسلامک لا کو، فقہ کو خراب نہ کریں، اور عبادت گاہیں، مسجد ہے، اور یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، مدینہ مکہ شریف ہے، ان میں کوئی خرابی نہ کریں۔ لیکن اصل جو مسئلہ جس کی وجہ سے آج میں نے کوشش کر رہا ہوں، آج میں نے جو ٹائم نکالا ہے، میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا، میڈیکل سائنس میرا ختم ہوا ہے فرسٹ ایئر، تو انجینئرنگ کی ریسرچ ختم ہوئی ہے، سول انجینئرنگ کی، تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم نکالوں کہ آج کل ایشوز چل رہے ہیں، سعودی عرب کے بڑے ایشوز چل رہے ہیں، تو میں اس پہ تھوڑی سی عرب پہ بات کروں۔ مین ٹاپک تھا وہ عرب کا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو عرب کی لوگ ہیں، کچھ عرب کے فرما روا ہیں، کوئی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، کچھ تیز کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے جو معاملات ہوئے تھے، سعودی عرب کی جنگ ہوئی تھی اور کویت وغیرہ کی جنگ ہوئی تھی، اس کے معاملات بھی میں بیچ میں شامل کر کے بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی شاہ، سعودی عرب کے شاہ یا فرما روا یا ان کے بادشاہ یا ان کی حکومت کے منسٹر وغیرہ کوئی بھی غلط چیز کرتے ہیں، تو ان کا جو ان کو کوشچنیبل جو ہے، یا ان کو جو ہے ان کے خلاف کوئی بھی معاملہ آپ نے حل کرنا ہے تو کورٹس میں حل کریں۔ ان پہ کسی طرح کا ایلیگیشن لگانا ہے، کورٹ میں لگائیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لگا سکتی ہے، یا اگر کوئی معاملہ اجتماعی ہے تو جو ان کو منع کرے، اجتماعی لوگوں کو جو اجتماعی بات کرتے ہیں، ان کی کیبنٹ بات کرتی ہے تو کیبنٹ کو کہیں کہ آپ ایسی بات نہ کریں۔ اور اگر دیکھیں یہ معاملہ ہے کہ سعودی عرب میں مکہ شریف، مدینہ شریف، منا، مزدلفہ بڑی بڑی دینی عبادت گاہیں ہیں اور عبادت کی جگہ ہیں، حج ہوتا ہے، روزہ عمرہ شریف ہوتا ہے، اور بڑے بڑے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد، تو ایسی جگہوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ بھی ہے اور قانونی فریضہ بھی ہے امت مسلمہ کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، تمام امت مسلمہ یہ چاہتے ہیں، جس طرح عیسائی لوگ چرچ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دینی عبادت گاہوں کی اور انجیل مقدس کی، بائبل کی، قرآن پاک کی، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جہاں حج کرتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی حفاظت ہم کریں، ہم بھی کریں ہمارے زبان سے اور باقی طریقوں سے۔ ٹھیک، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنی عبادت گاہیں کوئی خراب کرے، اس پہ کوئی حملہ ہو، کوئی وہاں کے حالات خراب کرے، سیاسی حالات خراب کرے، وہاں پہ بم پھٹے، خدا نہ خواستہ دہشت گردی ہو، وہاں پہ کوئی ہیروئن پیے، خدا نہ خواستہ عبادت کے علاوہ کوئی بھی کام کرے یا روزی کمانے، دو چیزوں کی اجازت ہے۔ مدینہ مکہ میں یا تھوڑا بہت آپ کاروبار کر سکتے ہیں، بازار میں، مارکیٹ میں، تجارت، یا پھر آپ عبادت کر سکتے ہیں دینی عبادت دینی جگہوں پہ، باقی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، دو چیزیں ہو گئی، یہ قانون ہے، یہ لا ہے۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی واضح ہے کہ یہ جگہ ادب کی ہے، امن کی ہے، اور باقی نبیوں سے بھی یہ چیز پروف ہے کہ مکہ مدینہ شریف اور جو عبادت گاہوں کی جگہ ہے، چاہے کسی بھی مذہب کی، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو، سب کا مذہب سب کا ایک ہوتا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، یہودیت، جیوز کا مذہب، عیسیٰ علیہ السلام کا،
हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, हज़रत जो है हज़रत याह्या का, हज़रत नूह का, किसी का मज़हब आप उठा के देख लें। जितने पीछे नबी आ रहे हैं और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सब मज़हब की एक ही तालीम है, एक ही एजुकेशन है, एक ही तालीम है और एक ही तरह के उनके नज़रियात और कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए मज़हब की जो जगह है, उनकी हिफाज़त करना हर मुसलमान और हर ईसाई और हर यहूदी और हर मज़हब का फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि हिंदुओं के जो गिरजे हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, उनकी हिफाज़त करना भी हर मज़हब का फ़र्ज़ है क्योंकि उनकी इबादत की जगह है। अब ये तो बात साबित हो गई कि इबादत की जगह तमाम की एक ही होती है, क्योंकि इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए होती है, ना इबादत मेरे लिए है, ना आपके लिए। ये तो बात वाज़िह है कि इबादत अल्लाह के लिए होती है। अल्लाह पे ईमान सबका है, नबी पे ईमान, तो अल्लाह और नबी के लिए इबादत होती है। लिहाज़ा ना इबादत की जगह मेरी ना आपकी बल्कि सारी दुनिया उम्मत पूरी दुनिया का फ़र्ज़ है इबादत जगह की हिफाज़त करना। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, किसी की भी इबादत की जगह है, ठीक है? अब हम ये बात करते हैं कि सऊदी अरब में दोबारा आऊँगा, सऊदी अरब के कई शाहों ने कोई गलत बयान दिए हैं, कईयों पे तेज़ी की एलिगेशन आ गए हैं कि इन्होंने तेज़ियाँ दिखाई हैं, तो उनको अगर सज़ा देनी है, तो आप अलहदा करके दें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बाकी कोर्ट्स हैं, उनके खिलाफ एतराज़ात हैं, उनके खिलाफ कोई प्ली है, उनके खिलाफ रेफरेंस है, वो आप अलहदा करके सज़ा दें, ना कि पूरे अरब को बीच में फँसाएँ। अब मसला क्या है कि कोई 2-4 अरब शरारत करते हैं, हमला पूरी सऊदी अरब पे किसी तरह से कहीं किसी जगह पे, किसी एरिया पे, किसी इलाके में, किसी ज़िले में, किसी प्रोविंस में उनके होता है, तो पूरे अरब जो बीच में नेक लोग हैं, वो सारे अरब का बेड़ा गर्क हो सकता है और ख़ास तौर पे मुसलमान की इबादत गाहों की जगहों का। तो यही बताना था कि जब अरब फर्मारवा मिनिस्टर कोई गलत बयान देता है, वहीं पे उसको पकड़ें कि यार ये आप गलत बयान ना दो, पूरा अरब आपकी वजह से अरब ममालिक और सऊदी अरब जो है वो उसकी सज़ा भुगतेगा और वो तकलीफ में आ जाएँगे, कोई ना कोई उनको नुकसान होगा जानी-मानी किसी भी तरह का। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी एक की सज़ा दूसरे को ना दें। अगर किसी शाह ने गलत काम किया है तो उसकी सज़ा पूरे अरब कौम को ना दें। सिर्फ़ उसको बुला के उसको सज़ा दी जाए, डिपोर्ट किया जाए, उसको जेल दी जाए, जो भी की जाए। ना कि पूरे अरब पर हमला किया जाए और पूरे अरब को सज़ा दी जाए कि पूरा अरब जो है वो मुजरिम है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, ना कुरान में ना कानून में कि किसी एक बंदे की सज़ा पूरी कौम को दी जाए। कौम की सज़ा कौम को, बंदे की सज़ा बंदे। और सबसे बढ़कर ये है कि उम्मत मुसलमान की 2 जगह हैं, खाना काबा शरीफ, रोज़ा रसूल और जो यहूदियों की जगह है, दीवार गिरिया है या बैतुल मुक़द्दस है, किसी भी चीज़ें हैं, कोई भी जगह है, उनकी मंदिर है, उनकी भी हिफाज़त की जाए, गिरजे हैं, चर्चेज़ हैं। और इस तरह ईसाइयों के चर्च और हिंदुओं के मंदिर की भी हिफाज़त की जाए और ये हिफाज़त करना बड़ा ज़रूरी है, गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है, शहरियों का भी फ़र्ज़ है। और बाकी जो है गवर्नमेंट की जितनी दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, यूनाइटेड नेशंस का भी फ़र्ज़ है और जितनी एनजीओज़ हैं, उनका भी फ़र्ज़ है। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट मलिक जावेद, थैंक यू वेरी मच। मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर जावेद इंस्पेक्टर फिर हाज़िर। कहना ये था कि आज मेरे ज़हन में ख़ास बात आई है मज़हब से मुताल्लिक़, क्योंकि मेरी फैमिली जो है बैकग्राउंड मेरा बहुत मज़हबी है। मैं पीर सैयद हूँ, डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। लेकिन साथ-साथ मज़हबी तौर पे हम जो सैकल फैमिली है, हम पीछे से हूँ। हमारा शेख का खिताब है अब्बू का, मज़हब की वजह से, मज़हबी तालीम की वजह से। और मज़हब की तरक्की और फ़रोग़ का काम और मज़हब के दिफ़ा का काम, मज़हब की तरक्की का काम, फ़रोग़ का काम हमने वालिद से और वालिदा से सीखा है कि अपने मज़हबी इबादात की जो हमारी इबादात के इलाके हैं, मक्का, मदीना शरीफ या इबादत गाहें हैं, जैसे मस्जिद है, पीरों के मकबरे हैं, इनकी हिफाज़त करना और दीन की तरक्की का काम या दीन के मसाइल को हल करने इज्तिहादी काम भी हमारा जद्दी कुश्ती मेरे वालिद से मेरे अब्बू आर्मी रिटायर्ड थे। तो उसके बाद ये काम मेरे ज़िम्मे आया, मैं बैरिस्टर था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, जर्नलिस्ट था, साइकियाट्रिस्ट था और इसके अलावा मैं ब्यूरोक्रेट था। तो कोशिश ये करते हैं कि हम
दीन का काम, दीन की तरक्की का काम, अमन का काम पूरी दुनिया में सिर्फ दीन की दिफा जो है वो दीन के इलाके का करते हैं और दीन के कई मामलात में कुरान में नई चीज़ें दाखिल ना करें। कुरान के आराब को, कुरान के मतन को खराब ना करें, हदीस शरीफ को खराब ना करें, इस्लामिक लॉ को, फ़िक़्ह को खराब ना करें और इबादत गाहें, मस्जिद है, और या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुज़दलिफ़ा है, मना है, मदीना मक्का शरीफ है, इनमें कोई खराबी ना करें। लेकिन असल जो मसला जिसकी वज़ह से आज मैंने कोशिश कर रहा हूँ, आज मैंने जो टाइम निकाला है, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल साइंस मेरा खत्म हुआ है फर्स्ट ईयर, तो इंजीनियरिंग की रिसर्च खत्म हुई है, सिविल इंजीनियरिंग की। तो मैंने कहा थोड़ा-सा टाइम निकालूँ कि आजकल जो इश्यूज़ चल रहे हैं, सऊदी अरब के बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मैं उस पे थोड़ी-सी अरब पे बात करूँ। तो मेन टॉपिक था वो अरब का था। मामला ये है कि असल जो मामला है वो ये है कि मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त जो अरब की लोग हैं, कुछ अरब के फर्मारवा हैं, कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ तेज़ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहले जो मामलात हुए थे, सऊदी अरब की जंग हुई थी और कुवैत वगैरह की जंग हुई थी, उसके मामलात भी मैं बीच में शामिल करके बात कर रहा हूँ कि मैंने ये बात की है कि अगर कोई शाह, सऊदी अरब के शाह या फर्मारवा या इनके बादशाह या इनकी हुकूमत के मिनिस्टर वगैरह कोई भी गलत चीज़ करते हैं, तो उनका जो उनको क्वेश्चनेबल जो है या उनको जो है उनके खिलाफ कोई भी मामला आपने हल करना है तो कोर्ट्स में हल करें। उन पे किसी तरह का एलिगेशन लगाना है, कोर्ट में लगाएँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगा सकती है या अगर कोई मामला इज्तमाई है, तो जो उनको मना करे, इज्तमाई लोगों को जो इज्तमाई बात करते हैं, उनकी कैबिनेट बात करती है, तो कैबिनेट को कहें कि आप ऐसी बात ना करें। और अगर देखें ये मामला है कि सऊदी अरब में मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, मना, मुज़दलिफ़ा बड़ी-बड़ी दीनी इबादतगाहें हैं और इबादत की जगह हैं। हज होता है, रोज़ा, उम्रा शरीफ होता है और बड़े-बड़े रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद। तो ऐसी जगहों की हिफाज़त करना हर मुसलमान का दीनी फ़रीज़ा भी है और कानूनी फ़रीज़ा भी है उम्मत मुस्लिमा का। हम ये चाहते हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा ये चाहते हैं जिस तरह ईसाई लोग चर्च की हिफाज़त करते हैं, अपने दीनी इबादतगाहों की और अंजील मुक़द्दस की, बाइबल की, कुरान पाक की और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जहाँ हज करते हैं खाना काबा शरीफ की हिफाज़त हम करें। हम भी करें हमारे ज़बान से और बाकी तरीकों से। ठीक, कोई भी नहीं चाहता कि अपनी इबादतगाहें कोई खराब करे। उस पे कोई हमला हो, कोई वहाँ के हालात खराब करे, सियासी हालात खराब करे, वहाँ पे बम फटे, खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी हो, वहाँ पे कोई हेरोइन पिए, खुदा ना खास्ता इबादत के अलावा कोई भी काम करे या रोज़ी कमाने, 2 चीज़ों की इजाज़त है। मदीना, मक्का में या थोड़ा बहुत आप कारोबार कर सकते हैं बाज़ार में, मार्केट में, तिजारत, या फिर आप इबादत कर सकते हैं। दीनी इबादत, दीनी जगहों पे, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक? 2 चीज़ें हो गई, ये कानून है, ये लॉ है। अब ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी वाज़ेह है कि ये जगह अदब की है, अमन की है और बाकी नबियों से भी। ये चीज़ प्रूफ़ है कि मक्का, मदीना शरीफ और जो इबादत गाहों की जगह है, चाहे किसी भी मज़हब की, मुसलमानों के अलावा किसी, वो सबका मज़हब सबका एक होता है। आप हज़रत मूसा अलैहि सल्लम का मज़हब उठा के देख लें, यहूदियत, ज्यूज़ का मज़हब, ईसा अलैहि सलाम का, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, हज़रत जो है हज़रत याह्या का, हज़रत नूह का, किसी का मज़हब आप उठा के देख लें। जितने पीछे नबी आ रहे हैं और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सब मज़हब की एक ही तालीम है, एक ही एजुकेशन है, एक ही तालीम है और एक ही तरह के उनके नज़रियात और कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए मज़हब की जो जगह है, उनकी हिफाज़त करना हर मुसलमान और हर ईसाई और हर यहूदी और हर मज़हब का फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि हिंदुओं के जो गिरजे हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, उनकी हिफाज़त करना भी हर मज़हब का फ़र्ज़ है क्योंकि उनकी इबादत की जगह है। अब ये तो बात साबित हो गई कि इबादत की जगह तमाम की एक ही होती है, क्योंकि इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए होती है, ना इबादत मेरे लिए है, ना आपके लिए। ये तो बात वाज़िह है कि इबादत अल्लाह के लिए होती है। अल्लाह पे ईमान सबका है, नबी पे ईमान, तो अल्लाह और नबी के लिए इबादत होती है। लिहाज़ा ना इबादत की जगह मेरी ना आपकी, बल्कि सारी दुनिया, उम्मत, पूरी दुनिया का फ़र्ज़ है इबादत जगह की हिफाज़त करना। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, किसी की भी इबादत की जगह है, ठीक है?
अब हम ये बात करते हैं कि सऊदी अरब में दोबारा होंगे, सऊदी अरब के कई शाहों ने कोई गलत बयान दिए हैं, कईयों में तेजी की एलिगेशन आ गए हैं कि इन्होंने तेजियां दिखाई हैं, तो उनको अगर सजा देनी है तो आप अलहदा करके दें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बाकी कोर्ट्स है, उनके खिलाफ एतराजात हैं, उनके खिलाफ कोई प्ली है, उनके खिलाफ रेफरेंस है, वो आप अलहदा करके सजा दें, ना कि पूरे अरब को बीच में फंसाएं। अब मसला क्या है कि कोई दो चार अरब शरारत करते हैं, हमला पूरी सऊदी अरब पे किसी तरह से कहीं किसी जगह पे, किसी एरिया पे, किसी इलाके में, किसी जिले में, किसी प्रोविंस में उनके होता है, तो पूरे अरब जो बीच में नेक लोग हैं, वो सारे अरब का बेड़ा गर्क हो सकता है, और खास तौर पे मुसलमान की इबादत गाहों की जगहों का। तो यही बताना था कि जब अरब फरमा रवा मिनिस्टर कोई गलत बयान देता है, वहीं पे उसको पकड़े, यार ये आप गलत बयान ना दो, पूरा अरब आपकी वजह से, अरब ममालिक और सऊदी अरब जो है वो उसकी सजा भुगतेगा, और वो तकलीफ में आ जाएंगे, कोई ना कोई उनको नुकसान होगा जानी मानी किसी भी तरह का। और दूसरी चीज ये है कि किसी एक की सजा दूसरे को ना दो। अगर किसी शाह ने गलत काम किया है तो उसकी सजा पूरे अरब कौम को ना दें, सिर्फ उसको बुला के उसको सजा दी जाए, डिपोर्ट किया जाए, उसको जेल दी जाए, जो भी दी जाए, ना कि पूरे अरब पर हमला किया जाए और पूरे अरब को सजा दी जाए कि पूरा अरब जो है वो मुजरिम है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, ना कुरान में ना कानून में, कि किसी एक बंदे की सजा पूरी कौम को दी जाए। कौम की सजा कौम को, बंदे की सजा बंदे। और सबसे बढ़कर ये है कि उम्मत मुसलमान की दो जगह है, खाना काबा शरीफ, रोजा रसूल, और जो यहूदियों की जगह है, दीवार गिरिया है, या बैतुल मुकद्दस है, किसी भी चीजें हैं, कोई भी जगह है उनकी, मंदिर है, उनकी भी हिफाजत की जाए, गिरजे हैं, चर्चेज हैं, और इस तरह ईसाइयों के चर्च और हिंदुओं के मंदिर की भी हिफाजत की जाए। और ये हिफाजत करना बड़ा जरूरी है, गवर्नमेंट का भी फर्ज है, शहरियों का भी फर्ज है, और बाकी जो है गवर्नमेंट की जितनी दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का भी फर्ज है, और जितनी एनजीओ हैं उनका भी फर्ज है। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट मलिक जावेद, थैंक यू वेरी मच। मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर जामुस फिर हाजिर। कहना ये था कि आज मेरे दिल में खास बात आई है मजहब से मुतालिक, क्योंकि मेरी फैमिली जो है, बैकग्राउंड मेरा बहुत मजहबी है। मैं पीर सैयद हूँ, डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन साथ साथ मजहबी तौर पे मैं, हम जो सैकल फैमिली है हम पीछे से हैं। हमारा शेख का खिताब है अबू का, मजहब की वजह से, मजहबी तालीम की वजह से। और मजहब की तरक्की और फरोग का काम, और मजहब के दिफा का काम, मजहब की तरक्की का काम, फरोग का काम हमने वालिद से और वालिदा से सीखा है कि अपने मजहबी इबादात की, जो हमारी इबादात के इलाके हैं, मक्का मदीना शरीफ, या इबादत गाहें हैं, जैसे मस्जिद है, पीरों के मकबरे हैं, इनकी हिफाजत करना, और दीन की तरक्की का काम या दीन के मसाइल को हल करने इश्तिहादी काम, ये हमारा जद्दी पुश्ती मेरे वालिद से, मेरे अबू आर्मी रिटायर्ड थे। तो उसके बाद ये काम मेरे ज़िम्मे आया। मैं बैरिस्टर था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, जर्नलिस्ट था, साइकियाट्रिस्ट था, और इसके अलावा मैं ब्यूरोक्रेट था। तो कोशिश ये करते हैं कि हम दीन का काम, दीन की तरक्की का काम, अमन का काम पूरी दुनिया में, सिर्फ दीन की दिफा जो है वो दीन के इलाके का करते हैं, और दीन के कई मामलात में कुरान में नई चीज़ें दाखिल ना करें, कुरान के आराब को, कुरान के मतन को खराब ना करें, हदीस शरीफ को खराब ना करें, इस्लामिक लॉ को, फ़िक़्ह को खराब ना करें, और इबादत गाहें, मस्जिद है, और या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुज़दलिफ़ा है, मना है, मदीना मक्का शरीफ है, इनमें कोई खराबी ना करें। लेकिन असल जो मसला जिसकी वजह से आज मैंने कोशिश कर रहा हूँ, आज मैंने जो टाइम निकाला है, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल साइंस मेरा खत्म हुआ है, फर्स्ट ईयर, तो इंजीनियरिंग की रिसर्च खत्म हुई है, सिविल इंजीनियरिंग की। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकालूं कि आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं, सऊदी अरब के बड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं उस पर थोड़ी सी अरब पे बात करूँ। तो मेन टॉपिक था वो अरब का था। मामला ये है कि असल जो मामला है वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो अरब की लोग हैं, कुछ अरब के फर्मा रवा हैं, कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ तेज काम कर रहे हैं।
जिसकी वजह से पहले जो मामलात हुए थे, सऊदी अरब की जंग हुई थी और कुवैत वगैरह की जंग हुई थी, उसके मामलात भी मैं बीच में शामिल करके बात कर रहा हूँ कि मैंने ये बात की है कि अगर कोई शाह, सऊदी अरब के शाह या फर्मारवा या इनके बादशाह या इनकी हुकूमत के मिनिस्टर वगैरह कोई भी गलत चीज़ करते हैं, तो उनका जो उनको क्वेश्चनेबल जो है या उनको जो है उनके खिलाफ कोई भी मामला आपने हल करना है तो कोर्ट्स में हल करें। उन पे किसी तरह का एलिगेशन लगाना है, कोर्ट में लगाएँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगा सकती है या अगर कोई मामला इज्तमाही है, तो जो उनको मना करे, इज्तमाही लोगों को जो इज्तमाही बात करते हैं, उनकी कैबिनेट बात करती है, तो कैबिनेट को कहें कि आप ऐसी बात ना करें। और अगर देखें ये मामला है कि सऊदी अरब में मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, मना, मुज़दलिफ़ा बड़ी-बड़ी दीनी इबादत गाहें हैं और इबादत की जगह हैं। हज होता है, रोज़ा, उम्रा शरीफ होता है और बड़े-बड़े रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद। तो ऐसी जगहों की हिफाज़त करना हर मुसलमान का दीनी फ़रीज़ा भी है और कानूनी फ़रीज़ा भी है उम्मत मुस्लिमा का। हम ये चाहते हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा ये चाहते हैं जिस तरह ईसाई लोग चर्च की हिफाज़त करते हैं, अपने दीनी इबादतगाहों की और इंजील मुक़द्दस की, बाइबल की, कुरान पाक की और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जहाँ हज करते हैं खाना काबा शरीफ की हिफाज़त हम करें। हम भी करें हमारे ज़बान से और बाकी तरीकों से। ठीक, कोई भी नहीं चाहता कि अपनी इबादत गाहें कोई खराब करे। उस पे कोई हमला हो, कोई वहाँ के हालात खराब करे, सियासी हालात खराब करे, वहाँ पे बम फटे, खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी हो, वहाँ पे कोई हेरोइन पिए, खुदा ना खास्ता इबादत के अलावा कोई भी काम करे या रोज़ी कमाने, 2 चीज़ों की इजाज़त है। मदीना, मक्का में या थोड़ा बहुत आप कारोबार कर सकते हैं बाज़ार में, मार्केट में, तिजारत या फिर आप इबादत कर सकते हैं। दीनी इबादत, दीनी जगहों पे, बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक? 2 चीज़ें हो गई, ये कानून है, ये लॉ है। अब ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी वाज़ेह है कि ये जगह अदब की है, अमन की है और बाकी नबियों से भी। ये चीज़ प्रूफ़ है कि मक्का मदीना शरीफ और जो इबादत गाहों की जगह है, चाहे किसी भी मज़हब की, मुसलमानों के अलावा किसी, वो सबका मज़हब सबका एक होता है। आप हज़रत मूसा अलैहि सल्लम का मज़हब उठा के देख लें, यहूदियत, ज्यूज़ का मज़हब, ईसा अलैहि सलाम का, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, हज़रत जो है हज़रत याह्या का, हज़रत नूह का, किसी का मज़हब आप उठा के देख लें। जितने पीछे नबी आ रहे हैं और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सब मज़हब की एक ही तालीम है, एक ही एजुकेशन है, एक ही तालीम है और एक ही तरह के उनके नज़रियात और कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए मज़हब की जो जगह है, उनकी हिफाज़त करना हर मुसलमान और हर ईसाई और हर यहूदी और हर मज़हब का फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि हिंदुओं के जो गिरजे हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, उनकी हिफाज़त करना भी हर मज़हब का फ़र्ज़ है क्योंकि उनकी इबादत की जगह है। अब ये तो बात साबित हो गई कि इबादत की जगह तमाम की एक ही होती है, क्योंकि इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए होती है, ना इबादत मेरे लिए है, ना आपके लिए। ये तो बात वाज़ेह है कि इबादत अल्लाह के लिए होती है। अल्लाह पे ईमान सबका है, नबी पे ईमान, तो अल्लाह और नबी के लिए इबादत होती है। लिहाज़ा ना इबादत की जगह मेरी ना आपकी, बल्कि सारी दुनिया, उम्मत, पूरी दुनिया का फ़र्ज़ है इबादत जगह की हिफाज़त करना। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, किसी की भी इबादत की जगह है, ठीक है? अब हम ये बात करते हैं कि सऊदी अरब में दोबारा आऊँगा, सऊदी अरब के कई शाहों ने कोई गलत बयान दिए हैं, कइयों पे तेज़ी की एलिगेशन आ गए हैं कि इन्होंने तेज़ियाँ दिखाई हैं, तो उनको अगर सज़ा देनी है, तो आप अलहदा करके दें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बाकी कोर्ट्स हैं, उनके खिलाफ एतराज़ात हैं, उनके खिलाफ कोई प्ली है, उनके खिलाफ रेफरेंस है, वो आप अलहदा करके सज़ा दें, ना कि पूरे अरब को बीच में फँसाएँ। अब मसला क्या है कि कोई 2-4 अरब शरारत करते हैं, हमला पूरे सऊदी अरब पे किसी तरह से कहीं किसी जगह पे, किसी एरिया पे, किसी इलाके में, किसी ज़िले में, किसी प्रोविंस में उनके होता है, तो पूरे अरब जो बीच में नेक लोग हैं, वो सारे अरब का बेड़ा गर्क हो सकता है और ख़ास तौर पे मुसलमान की इबादत गाहों की जगहों का। तो यही बताना था कि जब अरब फरमा-रवा मिनिस्टर कोई गलत बयान देता है, वहीं पे उसको पकड़ें। यार ये आप गलत बयान ना दो, पूरा अरब आपकी वजह से, अरब ममालिक और सऊदी अरब जो है वो उसकी सज़ा भुगतेगा और वो तकलीफ में आ जाएँगे। कोई ना कोई उनको नुकसान होगा जानी-मानी किसी भी तरह का।
और दूसरी चीज़ ये है कि किसी एक की सज़ा दूसरे को ना दें। अगर किसी शाह ने गलत काम किया है तो उसकी सज़ा पूरे अरब कौम को ना दें। सिर्फ़ उसको बुला के उसको सज़ा दी जाए, डिपोर्ट किया जाए, उसको जेल दी जाए, जो भी दी जाए। ना कि पूरे अरब पर हमला किया जाए और पूरे अरब को सज़ा दी जाए कि पूरा अरब जो है वो मुजरिम है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, ना कुरान में, ना कानून में कि किसी एक बंदे की सज़ा पूरी कौम को दी जाए। कौम की सज़ा कौम को, बंदे की सज़ा बंदे। और सबसे बढ़कर ये है कि उम्मत मुसलमा की 2 जगह हैं, खाना काबा शरीफ, रोज़ा रसूल और जो यहूदियों की जगह है, दीवार गिरिया है या बैतुल मुक़द्दस है, किसी भी चीज़ें हैं, कोई भी जगह है, उनकी मंदिर है, उनकी भी हिफाज़त की जाए, गिरजे हैं, चर्चेज़ हैं। और इस तरह ईसाइयों के चर्च और हिंदुओं के मंदिर की भी हिफाज़त की जाए और ये हिफाज़त करना बड़ा ज़रूरी है, गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है, शहरियों का भी फ़र्ज़ है। और बाकी जो है गवर्नमेंट की जितनी दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का भी फर्ज है और जितनी एनजीओज हैं उनका भी फर्ज है। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट मलिक जावेद, थैंक यू वेरी मच। मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर जामुस फिर हाजिर। कहना ये था कि आज मेरे ज़हन में खास बात आई है मजहब से मुतालिक, क्योंकि मेरी फैमिली जो है, बैकग्राउंड मेरा बहुत मजहबी है। मैं पीर सैयद हूँ, डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। लेकिन साथ-साथ मज़हबी तौर पे हम जो सैकल फैमिली है, हम पीछे से हैं। हमारा शेख का खिताब है अब्बू का, मज़हब की वजह से, मज़हबी तालीम की वजह से। और मज़हब की तरक्की और फ़रोग़ का काम और मज़हब के दिफ़ा का काम, मज़हब की तरक्की का काम, फ़रोग़ का काम हमने वालिद से और वालिदा से सीखा है कि अपने मज़हबी इबादात की जो हमारी इबादात के इलाके हैं, मक्का, मदीना शरीफ या इबादत गाहें हैं, जैसे मस्जिद है, पीरों के मकबरे हैं, इनकी हिफाजत करना और दीन की तरक्की का काम या दीन के मसाइल को हल करने इज्तिहादी काम ये हमारा जद्दी कुश्ती मेरे वालिद से मेरे अब्बू आर्मी रिटायर्ड थे। तो उसके बाद ये काम मेरे ज़िम्मे आया। मैं बैरिस्टर था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, जर्नलिस्ट था, साइकियाट्रिस्ट था और इसके अलावा मैं ब्यूरोक्रेट था। तो कोशिश ये करते हैं कि हम दीन का काम, दीन की तरक्की का काम, अमन का काम पूरी दुनिया में सिर्फ़ दीन की दिफ़ा जो है वो दीन के इलाके का करते हैं और दीन के कई मामलात में कुरान में नई चीज़ें दाखिल ना करें। कुरान के आराब को, कुरान के मतन को ख़राब ना करें, हदीस शरीफ को ख़राब ना करें, इस्लामिक लॉ को, फ़िक़्ह को ख़राब ना करें और इबादत गाहें, मस्जिद है, और या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुज़दलिफ़ा है, मना है, मदीना मक्का शरीफ है, इनमें कोई ख़राबी ना करें। लेकिन असल जो मसला जिसकी वज़ह से आज मैंने कोशिश कर रहा हूँ, आज मैंने जो टाइम निकाला है, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल साइंस मेरा खत्म हुआ है फर्स्ट ईयर। तो इंजीनियरिंग की रिसर्च खत्म हुई है, सिविल इंजीनियरिंग की। तो मैंने कहा थोड़ा-सा टाइम निकालूँ कि आजकल जो इश्यूज़ चल रहे हैं, सऊदी अरब के बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मैं उस पे थोड़ी-सी अरब पे बात करूँ। तो मेन टॉपिक था वो अरब का था। मामला ये है कि असल जो मामला है वो ये है कि मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त जो अरब की लोग हैं, कुछ अरब के फर्मानरवा हैं, कोई गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ तेज़ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहले जो मामलात हुए थे, सऊदी अरब की जंग हुई थी और कुवैत वगैरह की जंग हुई थी, उसके मामलात भी मैं बीच में शामिल करके बात कर रहा हूँ कि मैंने ये बात की है कि अगर कोई शाह, सऊदी अरब के शाह या फर्मानरवा या इनके बादशाह या इनकी हुकूमत के मिनिस्टर वगैरह कोई भी गलत चीज़ करते हैं, तो उनको क्वेश्चनेबल जो है या उनको जो है उनके खिलाफ कोई भी मामला आपने हल करना है तो कोर्ट्स में हल करें। उन पे किसी तरह का एलिगेशन लगाना है, कोर्ट में लगाएँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगा सकती है या अगर कोई मामला इज्तमाई है, तो जो उनको मना करे, इज्तमाई लोगों को जो इज्तमाई बात करते हैं, उनकी कैबिनेट बात करती है, तो कैबिनेट को कहें कि आप ऐसी बात ना करें। और अगर देखें ये मामला है कि सऊदी अरब में मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, मना, मुज़दलिफ़ा बड़ी-बड़ी दीनी इबादत गाहें हैं और इबादत की जगह हैं। हज होता है, रोज़ा, उम्रा शरीफ होता है और बड़े-बड़े रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद
تو ایسی جگہوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ بھی ہے اور قانونی فریضہ بھی ہے امت مسلمہ کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، تمام امت مسلمہ یہ چاہتے ہیں، جس طرح عیسائی لوگ چرچ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دینی عبادت گاہوں کی اور انجیل مقدس کی، بائبل کی، قرآن پاک کی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جہاں حج کرتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی حفاظت ہم کریں، ہم بھی کریں ہمارے زبان سے اور باقی طریقوں سے۔ ٹھیک، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنی عبادت گاہیں کوئی خراب کرے، اس پہ کوئی حملہ ہو، کوئی وہاں کے حالات خراب کرے، سیاسی حالات خراب کرے، وہاں پہ بم پھٹے، خدا نہ خواستہ دہشت گردی ہو، وہاں پہ کوئی ہیروئن پیے، خدا نہ خواستہ عبادت کے علاوہ کوئی بھی کام کرے یا روزی کمانے، دو چیزوں کی اجازت ہے۔ مدینہ مکہ میں یا تھوڑا بہت آپ کاروبار کر سکتے ہیں، بازار میں، مارکیٹ میں، تجارت، یا پھر آپ عبادت کر سکتے ہیں دینی عبادت دینی جگہوں پہ، باقی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، دو چیزیں ہو گئی، یہ قانون ہے، یہ لا ہے۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی واضح ہے کہ یہ جگہ ادب کی ہے، امن کی ہے، اور باقی نبیوں سے بھی یہ چیز پروف ہے کہ مکہ مدینہ شریف اور جو عبادت گاہوں کی جگہ ہے، چاہے کسی بھی مذہب کی، مسلمانوں کے علاوہ کسی، وہ سب کا مذہب سب کا ایک ہوتا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، یہودیت، جیوز کا مذہب، عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا، حضرت جو ہے حضرت یحییٰ کا، حضرت نوح کا، کسی کا مذہب آپ اٹھا کے دیکھیں، جتنے پیچھے نبی آ رہے ہیں اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب مذہب کی ایک ہی تعلیم ہے، ایک ہی ایجوکیشن ہے، ایک ہی تعلیم ہے، اور ایک ہی طرح کے ان کے نظریات اور کانسیپٹس ہیں۔ اس لیے مذہب کی جو جگہ ہے ان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان اور ہر عیسائی اور ہر یہودی اور ہر مذہب کا فرض ہے۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کے جو گرجے ہیں، ہندوؤں کے جو مندر ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہر مذہب کا فرض ہے، کیونکہ ان کی عبادت کی جگہ۔ اب یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ عبادت کی جگہ تمام کی ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، نہ عبادت میرے لیے ہے نہ آپ کے لیے۔ یہ تو بات واضح ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ پہ ایمان سب کا ہے، نبی پہ ایمان، تو اللہ اور نبی کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ لہٰذا نہ عبادت کی جگہ میری نہ آپ کی، بلکہ ساری دنیا، امت، پوری دنیا کا فرض ہے عبادت جگہ کی حفاظت کرنا، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، کسی کی عبادت کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں، دوبارہ آؤں گا، سعودی عرب کے کئی شاہوں نے کوئی غلط بیان دیے ہیں، کئیوں میں تیزی کی ایلیگیشن آ گئے ہیں کہ انہوں نے تیزیاں دکھائی ہیں، تو ان کو اگر سزا دینی ہے تو آپ علیحدہ کر کے دیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، باقی کورٹس ہیں، ان کے خلاف اعتراضات ہیں، ان کے خلاف کوئی پلی ہے، ان کے خلاف ریفرنس ہے، وہ آپ علیحدہ کر کے سزا دیں، نہ کہ پورے عرب کو بیچ میں پھنسائیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ کوئی دو چار عرب شرارت کرتے ہیں، حملہ پوری سعودی عرب پہ کسی طرح سے، کہیں کسی جگہ پہ، کسی ایریا پہ، کسی علاقے میں، کسی ضلع میں، کسی پروونس میں ان کے ہوتا ہے، تو پورے عرب جو بیچ میں نیک لوگ ہیں، وہ سارے عرب کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان کی عبادت گاہوں کی جگہوں کا۔ تو یہی بتانا تھا کہ جب عرب فرما روا منسٹر کوئی غلط بیان دیتا ہے، وہیں پہ اس کو پکڑیں، یار یہ آپ غلط بیان نہ دو، پورا عرب آپ کی وجہ سے، عرب ممالک اور سعودی عرب جو ہے وہ اس کی سزا بھگتے گا، اور وہ تکلیف میں آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی ان کو نقصان ہوگا، جانی مالی کسی بھی طرح کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی ایک کی سزا دوسرے کو نہ دو۔ اگر کسی شاہ نے غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا پورے عرب قوم کو نہ دیں، صرف اس کو بلا کے اس کو سزا دی جائے، ڈی پورٹ کیا جائے، اس کو جیل دی جائے، جو بھی دی جائے، نہ کہ پورے عرب پر حملہ کیا جائے اور پورے عرب کو سزا دی جائے کہ پورا عرب جو ہے وہ مجرم ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں لکھا، نہ قرآن میں نہ قانون میں، کہ کسی ایک بندے کی سزا پوری قوم کو دی جائے۔ قوم کی سزا قوم کو، بندے کی سزا بندے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ امت مسلمہ کی دو جگہ ہیں، خانہ کعبہ شریف، روضہ رسول، اور جو یہودیوں کی جگہ ہے، دیوار گریہ ہے یا بیت المقدس ہے، کسی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی جگہ ہیں ان کی، مندر ہیں، ان کی بھی حفاظت کی جائے، گرجے ہیں، چرچز ہیں، اور اس طرح عیسائیوں کے چرچ اور ہندوؤں کے مندر کی بھی حفاظت کی جائے، اور یہ حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے، گورنمنٹ کا بھی فرض ہے، شہریوں کا بھی فرض ہے، اور باقی جو ہے گورنمنٹ کی جتنی دنیا کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشنز کا بھی فرض ہے
और जितनी एनजीओज़ हैं उनका भी फ़र्ज़ है। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, मलिक, थैंक यू वेरी मच, मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो।